Assalamu alaikum dear students. Today we're going to be discussing the history and importance of hadith और उसमें जो टॉपिक है that is the parts of hadith. ठीक है, जिसको हम authenticity of hadith के टॉपिक के साथ भी relate कर सकते हैं. So primarily you need to know that hadith is composed of two parts. ठीक है, the first one is the chain of narrators and the other one is the words of the hadith. जो chain of narrators है इसको हम कहते हैं सनद, all right, और जो words of hadith है कि हदीस के एग्जैक्ट अरबिक 100% वर्ड्स वी कॉल देम एज द मतन ऑफ द हदीस. ठीक है जी. हदीस जो है दे आर द वर्ड्स, sayings and actions of the holy prophet peace be upon him that have been recorded. So these were said by the holy prophet peace be upon him and then they got passed on to the narrators until they were finally compiled. जब ये compiled form में आ गई तो we basically call them as the hadith of the prophet peace be upon him. ठीक है जी. जितने भी हदीस के नैरेटर्स हैं, जाहिर है प्रॉफिट इसी अपॉन हिम ने एक हदीस कही. Let's say the person X heard it, he passed on to person Y and then the person Z and then it was compiled. So from the prophet इसी upon him to person Z, these are all the narrators. ये पूरी चेन को हम कहते हैं सनद. इसकी प्लूरल फॉर्म है इसनद. I hope that you're clear with that. One of the famous hadith compilers, Abdullah bin Mubarak Raziyallahu anhu, said, had it not been for isnad, anyone would have said whatever they wanted to. अगर हमारे पास chain of narrators ना होती तो फिर जिसका जो दिल करता वो कह सकता था. ठीक है जी. सनद को पढ़ने का एक खास तरीका है and you have to basically give an example. So it says that Yahya narrated from Nafi, who narrated from Malik, who narrated from Abdullah ibn Amr, that he heard the Prophet peace be upon him say that he who misses the Asr prayer is as if he has lost his person and property. तो यहां पे हम देखें कि याहिया हैं, मालिक हैं, अब्दुल्ला बिन आमर हैं, ठीक है, नाफे हैं, प्रॉफिट इसी अपॉन हिम हैं, और फिर एक हदीस हमारे सामने आती है जो प्रॉफिट इसी अपॉन हिम ने कही और इन तमाम लोगों ने उसको पास ऑन किया until it was finally compiled. ठीक है. So this is how you read a certain sanad. अगर इस हदीस को देखा जाए तो द हदीस चेन starts from the prophet peace be upon him. Abdullah narrated it, then Malik narrated it, then Nafi narrated it, and then Yahya narrated it. We call the study of the narrators of a hadith, इनकी biographies की study को हम कहते हैं अस्मा और रिजाल, and it is very important in establishing hadith authenticity. तो ये तो बेटे सबसे पहले आपने जब भी हदीस के पार्ट्स का क्वेश्चन आए, ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस के क्वेश्चन आए, इंट्रो में सबसे पहले आपने सनद का बताना है कि होती क्या है, उसकी एग्जाम्पल बतानी है जैसे मैंने बताई है, फिर आपने मतन का बताना है. That the other part of the hadith is called as matan and it refers to the exact words of the hadith of the Prophet peace be upon him. For example, a matan can be pray as you see me praying. These are the words of the hadith. Another example of matan जो हम ऊपर कर चुके हैं, that he who misses the asr prayer is as if he has lost his person and property. मतन जो है वो exact words होते हैं हदीस के. अब scholars जो हैं उन्होंने सनद और मतन को स्टडी किया and in the time of the successors of the companions, सनद और मतन के रूल्स बना लिए गए इन ऑर्डर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हदीस. अब तक जितना मैंने आपको बताया है ये सब इंट्रो है ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स, जो आगे मैं दिखाऊंगा. अब सनद के पर्टिकुलर चेक्स क्या क्या है. सबसे पहले तो नैरेटर जो भी है, ठीक है, याहिया है, मालिक है, नाफे हैं या कोई और नैरेटर है, दैट पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड इन फेथ. उनका ईमान 100% होना चाहिए. अगर ईमान 100% नहीं है इसका मतलब है वो हदीस सही नहीं बता रहे. द चेन शुड बी अनब्रोकन. ये नहीं हो सकता कि एक नैरेटर है उसके 200 साल के बाद अगला नैरेटर आ रहा है. द प्रॉफिट इसी अपॉन हिम शुड बी इन द चेन. अगर प्रॉफिट इसी अपॉन हिम भी चेन में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हदीस सही नहीं. द नैरेटर शुड हैव अ गुड मेमोरी. जो भी नैरेट कर रहा है हदीस उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. द नैरेटर शुड नो दैट अ स्मॉल चेंज इन मीनिंग ऑफ द हदीस और स्मॉल चेंज इन द वर्ड्स ऑफ द हदीस कैन चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ द हदीस. ठीक है. The narrator should exactly report what they heard. अपनी तरफ से उसमें ट्वीकिंग नहीं करनी. ठीक है. They should be able to tell the details of the teacher. अगर हम यहां पे जाएं तो मालिक के टीचर बनते हैं अब्दुल्ला. अगर मालिक से पूछा जाए तो उन्हें अब्दुल्ला के बारे में तमाम डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कहां पे बैठते थे, क्या नॉर्मल लाइफ में करते थे. अगर वो ये डिटेल्स नहीं बता पा रहे then that means कि वो हदीस सही नहीं है. They should have met the person before and after them in the chain. So it is very important कि आपने किसी से हदीस ली है और फिर किसी को सुनाई है. Their character should be excellent. They should be known for their truthfulness. They should be known for their honesty.
और हमें एग्जाम्पल मिलती है कि इमाम बुखारी रजी अल्लाह अन्हो ने एक नैरेटर को रिजेक्ट किया था। हदीस जब वो कलेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक नैरेटर को रिजेक्ट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही सॉ द पर्सन लाइंग टू द एनिमल। तो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। सो दीज आर ऑल द चेक्स। और बेटे जब भी चेक लिखोगे आंसर में उसको एक्सप्लेन करना व्हाई दिस चेक इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि memory should be good, because if the memory is not good then they will not be able to remember the exact words and obviously the hadith is not going to be right। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन लाजमी करना है। इसके साथ साथ देयर आर चेक्स ऑफ मतन एज वेल। मतन के चेक्स क्या है? दैट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट कॉमन सेंस और लॉज ऑफ नेचर। प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम कभी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते थे जो लॉज ऑफ नेचर या कॉमन सेंस के खिलाफ हो। इट शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द कुरान और दी अदर ऑथेंटिक हदीस। जो भी कुरान मजीद के खिलाफ बात होगी या हदीस के खिलाफ बात होगी, मतलब प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम ने एक बात कही, अब वो अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और कुरान मजीद को वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। सो ये किसी हदीस में अगर है, किसी वर्ड्स में आ रहा है, मतन में आ रहा है, तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे। Hadith will not go against the family of the Prophet, peace upon him, nor be indecent in nature. For example, bad biting or abuses. अब एक चीज है जो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, तो कैसे हो सकता है हम ऐसे हदीस ले रहे हैं? ये प्रॉफिट पीस अपॉन में वर्ड्स का है। There should be no accurate details of the future. Accurate details से मुराद ये है कि प्रॉफिट पीस अपॉन ने कभी ये नहीं कहा था कि फ्यूचर में इस मोमेंट पे इस वक्त ये वाकया होगा। मिसाल ये है कि उन्होंने ये नहीं कभी कहा कि जी क़यामत का टाइम ये होगा, इस मोमेंट पे आ जाएगी। उन्होंने वेग डिटेल ज़रूर दी हैं, उन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट ज़रूर किया है और उसमें उन्होंने डिफरेंट साइंस बताए, लेकिन एक्यूरेट पिन पॉइंट करके चीज़ कोई नहीं बताई। देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा प्रेज ऑफ अ पर्सन और अ ट्राइब। प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम हमेशा एग्जाम्पल के तौर पर लोगों को प्रेज करते थे। एक्स्ट्रा प्रेज कभी किसी की नहीं कीजिए, फलाने से ये बेहतर है या फलाने से वो बेहतर है। These words should not give huge rewards for small deeds or small punishments for huge sins। ये नहीं हो सकता कि पत्थर आपने उठा के साइड पे रखा है तो उसमें हदीस में आपको जन्नत दी जा रही है। इट शुड बी इन द प्योर अरबिक, इन द कुरैशी डायलेक्ट, जो प्रॉफिट ईसी अपॉन हिम का था। अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तो हदीस इज गोइंग टू बी ऑथेंटिक। बेस्ड ऑन दीज चेक्स द स्कॉलर्स दे क्लासिफाई हदीस एज ऑथेंटिक व्हिच इज साउंड 100% एक्यूरेट, जिसका सनद और मतन दोनों 100% एक्यूरेट है। एज हसन विच इज गुड, जिसके सनद में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, प्राइमरली मेमोरी इशू, बट मतन जो है वो 100% एक्यूरेट है। या ज़ईफ जो कि वीक हदीस है, इसका सनद और मतन दोनों जो है वो डाउटफुल होते हैं। और एज मौजू हदीस विच इज द फैब्रिकेटेड हदीस, इसकी ना तो सनद होती है ना ही मतन होता है। सो ये हम स्कॉलर्स इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं इन टाइप्स में। और इसी के साथ साथ स्कॉलर्स मतन से दो और अहादीस जनरेट करते हैं। पहली है हदीस नबवी। These are the words of the Prophet peace be upon him, said by the Prophet peace be upon him. For example, pray as you see me praying. The other is Hadith Qudsi. These are the words of Allah that were said by the Prophet peace be upon him, not a part of the Quran. An example is fasting is for me and I will reward for it. ठीक है, सो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब सवाल क्या आता है? द क्वेश्चन इज सिंपल, दैट राइट एन अकाउंट ऑन हाउ स्कॉलर्स चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हदीस, और राइट एन अकाउंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हदीस। ठीक है, और राइट एन अकाउंट ऑन इसनद एंड मतन ऑफ द हदीस। सबका आंसर सेम रहेगा, जिसमें आपने पहले सनद और मतन की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, उनका इंट्रो देना है, फिर दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में सनद के चेक्स देने हैं, चौथे पैराग्राफ में आपने मतन के चेक्स देने हैं, पांचवें पैराग्राफ में आपने सही, हसन, ज़ईफ, मौजू, हदीस कुदसी और हदीस नबी को एक्सप्लेन करना है। इमाम बुखारी वाली एग्जांपल लाजमी देनी है, दैट ही रिजेक्टेड द नरेटर ऑफ अ हदीस हु वाज लाइंग टू हिज एनिमल। आई होप दैट यू आर क्लियर विद इट। आई विल सी यू इन द